بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد مرکب کے اب بحث اور ان کی پہچان اور ان کے تمام اقسام کی پہچان اور ان کے اجراء اور تراکیب کے بعد اب چونکہ مفرد کا تعلق کلمہ سے ہے اور کلمہ تین چیزوں کا نام ہے: اسم، فعل، حرف۔ اب اسم، فعل، حرف کی علامات ہے اور پہچان ہے۔ تو اسم کے اندر 11 علامات ہو تو اسم ہوتا ہے، فعل کے اندر 8 علامات ہے تو اسم فعل ہوتا ہے، اور حرف اسے کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ علامت اسم ہو اور نہ علامت فعل ہو۔ اب آپ حضرات سے یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ الفاظ ذیل میں علامات سے پہچان کر بتاؤ کہ کون لفظ ہے، کون لفظ اسم ہے، کون فعل اور کون حرف، اور ساتھ ساتھ علامت کو بھی ظاہر کرو جس سے آپ نے پہچانا ہے۔ تو ایک دو میں بتا دیتا ہوں۔ رسولو یہ اسم ہے، مفرد ہے، کلمہ ہے اور اسم ہے۔ مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور علامت اس کی کیا ہے؟ مضاف ہے اور علامات اسم۔ اور لفظ اللہ مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور علامت اس کی کیا ہے؟ معرف باللام ہے۔ علامت اس کی کیا ہے؟ معرف باللام، یعنی الف لام اس پر داخل ہے۔ اور اسی طرح الجنتو مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، علامت اسم دخول الف لام ہے۔ اب احتشام بھائی آپ بتاؤ الصراطوں کے حوالے سے، الصراطوں میں کا اجرا کر لیں۔ مفرد ہے، اسم ہے، اور علامت اسم جو ہے نا دخول الف لام ہے۔ جی، اور کویرت کویرت تو استاد جی یہ مفرد ہے اور یہ فعل ہے، کلمہ ہے، پھر کلمہ ہے اور فعل ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ علامت فعل جو ہے نا تا ساکنہ ہے، تاء تانیث ساکنہ۔ تا تانیث ساکنہ۔ مفرد ہے، کلمہ ہے، اور حرف ہے۔ حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے عرفان شاہ صاحب سمعتا کے حوالے سے بتاؤ۔ نعمان قمر بھائی سمعتا کے حوالے سے جی بتا۔ جی استاد جی، یہ استاد جی مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، اور یہ آخر میں تا ہے، یہ ضمیر علامت فعل، مرفوع متصل ہے۔ علامت فعل کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضربتا ضربتے ضربتو، سمعتا سمعتے سمعتو۔ اور دخلتو دخلتو بھی استاد جی مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، تا آخر میں استاد ضمیر جی وہ ہے، مرفوع یہ سیغہ متصل، اس کا تو ضمیر مرفوع متصل کا ہونا ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ جی، ساحرانی بھی استاد جی یہ مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، علامت اسم تثنیہ ہے۔ سوف یکون مرکب ہے استاد جی، فعل ہے، مرکب ہے، اور یہ مرکب کوئی علامت نہیں ہے، سوف فعل ہے اور علامت فعل سوف کا داخل ہونا ہے۔ جی شروع میں سوفا کا داخل ہوئی بھی، جی، اور سیکون مفرد ہے، فعل ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، اور سیکون علامت سین فعل استاد یہ ساتھ بولا کرے، پورے الفاظ بولا کرے۔ جی استاد جی، ہاں، علامت فعل سین شروع میں داخل ہوا ہوا ہے۔ کوئی اور ساتھی؟ جی استاد محترم۔ جی بولے، لا جی تنفطر۔ جی سر جی، مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، اور علامت فعل کی علامت شروع میں لا نہیں ہے۔ علائنہ ہی سر میں ہونا ہے۔ آگے سر جی، ما سر جی یہ مفرد ہے، کلمہ ہے، اور حرف ہے۔ رجیلن، رجیلن سر جی مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور علامت اس میں اسم سر جی یہ تصغیر ہے، تصغیر، مصغر ہے۔ جی، اس کے بعد بلخیجن، یہ سر جی مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور علامت اسم منصوب ہے۔ منصوب ہے۔ جی، نبیون کا کر لے، نبیون۔ نبیون وہ بھی سر جی مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور سر جی وہ بھی منصوب ہے۔ نہیں، تنوین ہے نا۔ جی سر جی آگے مساجدو، سر جی مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور جمع ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کر لیں وہ محمدن۔
جی سر جی. محمد مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور علامت اسم آخر میں تنوین ہے. اس کے بعد نبی ٹھیک ہے. جون سر جی وہی آگے سر جی. اس کے بعد مکی جون اب آگے ہے مکی ان کا کر لیں. سر جی. مفرد ہے، اسم ہے، مفرد ہے، کلمہ ہے، اسم ہے، اور سر جی یہ منصوب ہے. یہ تو علامات اسم اور علامات فعل اور علامات حروف کا ہمیں پتہ چل گیا. اب آگے دو چیزیں ہیں، معرب اور مبنی. تو معرب اور مبنی کے ہم نے یوں کیا تھا آسان ترتیب سے کہ معرب کلام عرب کے اندر کل دو چیزیں ہیں، ایک اسم متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ دو چیزیں کیا ہے؟ معرب ہے. اور مبنی کی پھر آگے ہم نے دو قسمیں بنائی تھی، ایک مبنی الاصل اور ایک مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں. مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف. فعل ماضی، تمام حروف اور امر حاضر، معروف. یہ مبنی الاصل ہے، یہ تین چیزیں. اس کے بعد مشابہ مبنی الاصل ہم نے کل کتنی چیزیں بنائی تھی؟ تین چیزیں. ایک اسم غیر متمکن، اور نمبر دو فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ ہو. اور تیسرا کون بتائے گا؟ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. ہاں، اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یاد رکھ کے یہ جس نے سنائی ماشاءاللہ اس کو یاد ہے. اب یہ مبنی اور اس کا ترکیب یوں، اس کی ترتیب ہم یوں بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور پھر اگر معرب ہو پھر تو کون سا معرب ہے، اور اگر مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے، اور اگر مبنی الاصل ہے تو مبنی الاصل کی کون سی قسم ہے، اگر مشابہ مبنی الاصل ہے تو اس کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں ہم نے واضح اور کھل کر بتانی ہے. یہ آپ کے سامنے عبارت لگی ہوئی ہے، ایک یا دو عبارتیں میں کر کے دکھا دیتا ہوں. افتحو، افتحو، افتحو لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے. مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے. اور معرب مبنی میں سے کون سا ہے؟ مبنی ہے. اور مبنی مشابہ مبنی الاصل اور مبنی الاصل میں سے کون سا ہے؟ مبنی الاصل ہے. اور مبنی الاصل کی کون سی قسم ہے؟ امر حاضر، معروف. اچھا جی. اس کے بعد لم یفعل ہے. لم یفعل لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے. مفرد ہے، کلمہ ہے، فعل ہے. اور آپ یہ بتاؤ کہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا؟ معرب ہوگا. معرب معرب ہوگا. کیا ہوگا؟ معرب معرب ہے. ہاں، معرب ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہاں، معرب ہوگا. اور معرب کی کون سی قسم ہوگی؟ فعل مضارع جو کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہے. جی. لن یسمعوا، کوئی ساتھی کر لے. شاباش. جی. یہ لن یسمعوا لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، کلمہ ہے، اور کلمہ ہے، مفرد ہے اور فعل ہے. پہلے مفرد ہوتا ہے پھر کلمہ. مفرد ہے، کلمہ ہے اور فعل ہے. اور فعل میں آگے یہ معرب ہے. ہاں، معرب کی کون سی قسم ہے؟ معرب میں فعل مضارع ہے. ہاں، معرب میں فعل مضارع ہے جو کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 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 اضربنان نے کوئی ساتھی کر لے. استاد جی یہ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے، مفرد ہے ہم، اور کلمہ ہے، ہم. اور استاد جی یہ مبنی ہے، فعل ہے. فعل ہے، مبنی ہے، ہاں. اور یہ فعل ہمارے حاضر الاصل ہے. کیا ہے؟ مبنی مبنی الاصل. اصل. اور مبنی الاصل کی قسم امر حاضر معروف ہے. امر حاضر معروف. جی.
اب हाजा किताबी, हाजा कभी कर ले, फिर किताबी कभी कर ले। हाजा लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, मुफरद है और हरफ है, इसम है, इसमें इशारा है। इशारा है, ठीक है। ठीक अलामत है, इसम इसमें क्या है? इसमें इशारा होना, ये खुद अलामत इसम है। इसमें सही, इशारा होना ये खुद अलामत इसम है। इसम है। हाँ जी, बिल्कुल। मबनी है और मुशाबे मबनी उल मबनी, असल है, हाँ जी, मुशाबह मबनी उल असल है। और मुशाबे मबनी उल असल की किस्म इसमें गैर मुतमक्किन है, और इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म इसमें इशारा है। ठीक है जी। सही, सही। जी ठीक है। हाँ, इस तरह पहुंचना है, ठीक है। हाजा लफ्ज, लफ्ज मौजू, मुफरद, कलमा, इसम, अलामत इसम, इसमें इशारा, और मबनी, मुशाबे मबनी उल असल, मुशाबे मबनी उल असल की किस्म इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म इसमें इशारा। किताबी, इसका कौन करेगा जी? जी ये लफ्ज 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 मौजू है हाँ, और ये मुरक्कब है, किताबी मुफरद मुरक्कब है, इजाफी। मुफरद है, उस्ताद जी, मुफरद है, हाँ, मुफरद, कलमा है, कलिमा है, इसम है, हाँ, और ये मबनी गैर मबनी। हाँ। यहीं से तो पता चलेगा आपको कि आप इसको मोरब मानते हो या मबनी। मोरब है सर जी। हाँ, मोरब की कौन सी किस्म है? किताबी जी क्या है? इसमें इसमें मुतमक्किन है मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़िया है जी सर जी। तरकीब में, और इसमें मादर मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़या हो तो क्या होता है? मोरब हो जाता है या मबनी? सर जी, वो मोरब होता है। ठीक है, समझ गए हजरात? जी सर जी। हाँ, ये जी थोड़ा समझ सा गए। वक्त लेने का ये मतलब था कि ये बात समझ आ जाए। जी, किताबी इसमें किताब इसमें मुतमक्किन है, अगर ये अलग हो तो मबनी होगा, अगर तरकीब में वाक़या हो तो फिर ये क्या होता है? मोरब होता है। तो लिहाजा ये मोरब है, और मोरब की कौन सी किस्म है? इसमें मुतमक्किन जो कि तरकीब में वाक़या हो। समझ आ गया सब हजरात को? जी सर मोहतरम। और हमेशा याद रखे कि जैसे सवाल होगा जवाब वैसे होगा। अच्छा, अब आखिर में, किताबी के आखिर में या ज़मीर है, उसका कर ले कोई। सर जी, ये लफ्ज़ है और लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है और कलिमा है और हर्फ है और ये हर्फ नहीं है, मबनी इसम है। इसम है। हाँ सर जी, या ज़मीर सर जी। हाँ, इसम है, जी और सर जी। इसम ज़मीर है। जी सर जी, ज़मीर सर जी, इसम है और इसम की अलामत सर जी ज़मीर है सर जी। और सर जी ये मोरब मबनी में से मबनी है, और मबनी में से सर जी ये मुशाबे मबनी उल असल है। जी जी सर जी, मुशाबह मबनी उल असल है। हाँ, और मुशाबे मबनी उल असल की किस्म सर जी ज़मीर है। गैर मुतमक्किन है, और इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म ज़मीर है। जी ठीक है जी। जी सर जी। जी, कोई और साथी कर ले नासारा का, नासारा। जी, लफ्ज मौजू है, मुफरद है, कलिमा है, फ़िल है, मबनी है, मबनी असल है, और जबरदस्त, मबनी असल की किस्म फ़िल मादी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने उस्ताद जी, ये जो है ना, ये मुफरद है, ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलिमा है, फ़िल है, और मबनी है, हम्म, मबनी है, मबनी असल है, मुशाबे मबनी मबनी उल असल, असल। मुशाबे मबनी असल है, फ़िल मुज़ारे है जो कि नून जमा मुअन्नस के साथ है। ठीक है जी, ये आसान तबीर यही है। अच्छा जी, अब आगे भी आप हजरात को कुछ इन्होंने सवाल मोरब मबनी के दिए हैं। या अय्युहन नासु अब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इन्होंने तरतीब से ये जो है ना वो दिए हैं। इसमें आपने हर हर लफ्ज के हवाले से बताना है कि कौन मोरब है इसमें और कौन मबनी है। ठीक है जी, तो कौन बताएगा? शुरू कर ले। उस्ताद जी, या जो है ना, लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़
लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलिमा है, हर्फ है। जी, हर्फ हर्फ है ना उसका? अदा है बस। जी, या जी हर्फ है। मोरब है, मबनी है। मबनी है, मबनी असल की मबनी की कसम, मबनी मबनी असल है। हर्फ मबनी असल की कसम हर्फ है। और अय्युहा, अय्यो उस्ताद जी, अय्यो को अलहदा करेंगे, हाँ को अलहदा करेंगे ना उस्ताद जी। जी बिल्कुल। लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलेमा है। और ये उस्ताद जी हर्फ इसम है। जी इसम है, मबनी है, मुशाबह मबनी असल है। और मुशाबह मबनी असल की किस्म जो है ना वो इसमें गैर मुतमक्किन है। और हाँ इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म इसमें इशारा है। हाँ, इसमें मौसूल है। क्या है? मौसूल, अय्यो अय्यो इसमें अय्युन मौसूल है। क्या होता है? इसमें मौसूल में से है। ठीक है। हाँ, हर्फ तंबीह। जी बोले। हाँ हर्फ, जी हर्फ तंबीह। हाँ, लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलिमा है। हर्फ हर्फ है, मबनी मबनी है, और मबनी असल है। और मबनी असल की किस्म हर्फ हर्फ है। जी, अन्नासो कौन करेगा? मैं कर देता हूँ। अन्नासु लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलिमा है, इसम है, अलामत इसम अलिफ लाम है, और मब, मब, अ, मब, मुअरब है। जी, इसमें मुतमक्किन है जो तरकीब में आता है। जो के तरकीब में वाक़या है। ठीक है, इसी वजह जी से मुअरब है। ठीक है। आगे आगे कोई साथी उअबुदू कर ले। जी, उअबुदू लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, मुफरद है, कलिमा है, फ़ेल है, और फ़ेल है, और उसके बाद मुअरब है। मुअरब में अमर है, अमर हाजिर मुअरब मारूफ। मबनी है। मबनी है, और मबनी मबनी में अमर हाजिर मारूफ है। जी बिल्कुल। मबनी असल, मबनी मबनी असल। असल, मबनी 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 उल असल। और मबनी उल असल की किस्म अमर हाजिर मारूफ। मारूफ। हजरात ठीक है। जहनान हाजिर रहे। जी, अल्लाज़ी रब्बकुम, रब्बा। जी लफ्ज़ रब्बा लफ्ज़ है, मौजू है, मुफरद है, इसम है। कलमा मौजू इसम मौजू है, कलिमा है, इसम है, और अलामत इसम सर जी ये मुज़ाफ हो रहा है। और सर जी उसके बाद ये मौरब है। हम्म, और मौरब सर जी इसमें मुतमक्किन तरकीब में वाक़या है। और सर जी आगे कुम सर जी लफ्ज़ कुम लफ्ज़ मौजू, कलिमा है। और सर जी उसके बाद ये सर जी मुफरद कलिमा। इसम मुफरद है, कलिमा है, इसम है। और इसम की अलामत सर जी ये ज़मीर है। और सर जी मबनी है। और सर जी मबनी की अलामत में से मबनी मबनी असल मुशाबे है। ठीक है। और सर जी ये ज़मीर है, अपने असल के मुशाबे है, उसकी किस्म में से ज़मीर है। ठीक है। इसमें गैर मुतमक्किन है। इसमें गैर मुतमक्किन है, और इसमें गैर मुतमक्किन की अलामत में से किस्मों में से ये ज़मीर है। बिल्कुल, मुशाबे मबनी उल असल और मुशाब मबनी उल असल की किस्म इसमें गैर मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से ज़मीर है। जी अब इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम है। मुज़मरात है, अस्माए इशारात है, अस्माए मौसूलात है। अस्माए फ़ाल, अस्माए सिफ़ात, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए किनायत और मुरक्कब बिनाई। हाँ, मुरक्कब बिनाई, ये 8 अक़साम है इसमें गैर मुतमक्किन के, जो कि मुशाबे मबनी उल असल में से हैं। अब इन्होंने आगे ज़मायर की वो दी है इजरा। पूछना ये चाहते हैं कि इन मिसालों की तरकीब और तर्जुमा लिख कर दिखाओ और ज़मीर की किस्म भी जाहिर करो। तो अब अना काइमुन, इसकी हमने सबसे पहले ज़मीर मालूम करनी है, और ज़मीर मालूम करने के बाद इसका तरकीब करना है, फिर आखिर में इसका तर्जुमा करना है।
अब इसका आना का हम क्या करेंगे? आना ज़मीर ज़मीर मरफू मुनफसिल मुस्नद इलैह है मुब्तदा। आना की तरकीब, आना का इजरा कैसे करेंगे? आना ज़मीर ज़मीर मरफू मुनफसिल मुस्नद इलैह है मुब्तदा, और कायमुन मुस्नद खबर, कायमुन मुस्नद खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला कलाम जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया, साथ साथ चले। और अंता गुलाम व जाइदिन, अंता, अंता का लफ्ज अंता शुरू से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं कि अंता ज़मीर ज़मीर मरफू मुनफसिल मुस्नद इलैह है मुब्तदा, और गुलाम मुजाफ और जाइदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब मुरक्कब इजाफी मुरक्कब गैर मुफीद मुरक्कब इजाफी मुस्नद खबर, मुस्नद खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला इस्मिया खबरिया। ज़रबा मुस्नद फ़िल, काफ ज़मीर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही, और ज़ैदुन मुस्नद इलैह फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला फ़िअलिया खबरिया। और ज़ैदुन ज़रबका, ज़ैदुन ज़रबका, ज़ैदुन मुस्नद इलैह है मुब्तदा, ज़रबा मुस्नद फ़ेल, हुआ ज़मीर इसके अंदर ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फ़ाइल, और काफ ज़मीर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला फ़िअलिया खबरिया होकर मुस्नद खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला इस्मिया खबरिया। कोई साथी यही कर ले जो मैंने कर लिया, ज़ैदुन ज़रबका। सही, जैदुन ज़राबा का सही जी, जैदुन सही जी, जैदुन मुस्नद इलैहि मुब्तदा और ज़राबा मुस्नद फेल, और इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फाइल और काफ ज़मीर आपने वाज़ेह खबर नहीं किया कि ज़रबा के अंदर कौन सी ज़मीर? ज़रबा मुस्नद फेल, हुआ ज़राबा ज़मीर मुस्नद फेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल हुआ ज़मीर इसका इसके फाइल अंदर मरफू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फ़ाइल। फाइल, ठीक है जी, और काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, मफ़ऊल बिही, बिल्कुल ठीक है। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मुस्नद मुस्नद खबर, खबर, हाँ मुस्नद खबर मुत्ता खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी। आना यूसुफो, अना ज़मीर मरफू मुनफसिल और क्या मुब्तदा, बना? हाँ, मुस्नद इलैह है मुब्तदा, मुस्नद इलैहि मुब्तदा, यूसुफ खबर और यूसुफो मुस्नद मुस्नद, खबर, यूसुफो मुस्नद यूसुफ मुस्नद खबर और हाँ, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला मुरक्कब, जुमला मुरक्कब 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 मुफीद है जुमला जुमला इस्मिया खबरिया। जबरदस्त जी। नहनु आलिमूना, नहनु ज़मीर ज़मीर मरफू मुनफसिल मुस्नद इलैह है मुब्तदा, जी सर जी, नहनु ज़मीर मरफू मुनफसिल मुस्नद इलैहि मुब्तदा, और आगे सर जी है आलिमूना मुस्नद खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब 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 में मुफीद फिर जुमला हुआ, और जुमला की किस्म जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी बिल्कुल ठीक है जी। आगे ज़रबूहुम, ज़राबू मुस्नद फेल, वाव ज़मीर इसका फाइल मुस्नद इलैह, पूरी बात बताओ, वाव ज़मीर कौन सा ज़मीर है? वाव ज़मीर ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, हाँ, पूरी बात बताओ ना फिर, क्या, ताकि बार बार बोलना ना पड़े। वाव ज़मीर ज़मीर मुस्नद मरफू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फाइल, हम ज़मीर का कुमा कुम के कुमा कुन्ना हुआ हुमा हम हिया हुमा हुन्ना, ये ज़मीर जब फाइल के फेल के बाद होते हैं तो मंसूब मुनफसिल होते हैं। हमेशा याद रखें, ऐसी बातें नोट कर लिया करें, दिमाग में बैठाया करें। ठीक है जी। जी। जी, तो हम ज़मीर ज़मीर मंसूब मुनफसिल
मफूल बिही। जी मफूल बिही। जी। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर मुरक्कब मुफीद मुरक्कब, पहले मुरक्कब बनाओ, क्योंकि मुरक्कब मुरक्कब मुफीद किस्म है मुरक्कब का। पहले उसका जी। मकसम बोलो, फिर किस्म बताओ। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर मुरक्कब। मुरक्कब मुरक्कब हाँ मुफीद जी। मुरक्कब मुफीद जुमला 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 फेलिया खबरिया फेलिया हो। खबरी। ज़रबहा अम्रुन। ज़रबा लफ्ज, ज़रबा मुस्नद फेल, हा ज़मीर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, और अम्रुन मुस्नद इलैहि है फाइल। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला फ़िअलिया खबरिया। ज़रबता हा। उस्ताद जी ज़रबा जो है ना मुस्नद फ़ेल, था ज़मीर मरफू मुत्तसिल, जी। मुस्नद इलैहि फ़ाइल, और हा ज़मीर जो है हा ज़मीर 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 मंसूब मुनफसिल मुत्तसिल मफूल मुनफसिल, और मफूल बिही। ज़मीर मफूल बिही। तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला जुमला मुरक्कब मुरक्कब मुफीद जुमला जुमला खबरिया जुमला फ़िअलिया जुमला खबरी। फ़िअलिया खबरिया जुमला फ़िअलिया खबरिया। जी, तो इसमें भी तकरीबन हर रंग की हर किस्म की तरकीब आपके सामने आ गए। कुछ तरकीब है, बाद में भी आप देख लें। उसके बाद है ये जो सबक था, इसमें तो ज़मीर का बहस था। अब अगला जो सबक है उसमें अस्माए अफ़आल और जितने भी दूसरे इसमें गैर मुतमक्किन के अक़साम है, उसके सारे तरकीब उसमें और सारा इजरा होगा उसमें। तो अस्माए अफ़आल दो किस्म पर थे, बमाने अमर हाजिर और बमाने फ़िल माज़ी। और अमर हाजिर के अपने अल्फाज है और बमाने फ़िल माज़ी फिर अपने अल्फाज है। और इसी तरह उसके बाद है अस्माए अस्वात, और उसके बाद है अस्माए ज़ुरूफ। ज़ुरूफ दो किस्म पर है, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। और उसके बाद है अस्माए किनायात, कम और कज़ा और कायता और ज़ायता। और उसके बाद है मुरक्कब बिनाई, जैसे अहदा आशरा, अहदा आशरा। तो अब ये जो बात आप हजरात जहन में बिठाएं कि इतना हमने पढ़ लिया, और ये चीजें जहन में रख के, जहन में रखते हुए अब आप इसको हल कर सकते हैं। झेल की मिसालों में अस्माए अफ़आल अस्माए ज़ुरूफ को पहचानो और हर एक मिसाल का तर्जुमा और तरकीब लिखो। शताना बैन ज़ैदिन व अम्रिन, इसमें अस्माए अफ़आल और अस्माए ज़ुरूफ को पहचानना है और हर एक मिसाल का तर्जुमा और तरकीब भी करना है। तो कौन साथी इसमें बताएगा कि इसमें अस्माए ज़ुरूफ कौन से हैं और अस्माए अफ़आल है, तो अस्माए अफ़आल का की कौन सी किस्म है, और फिर इसकी तरकीब भी करें। शताना किस माने में है? बमाने फ़िल माज़ी। ठीक है जी। शताना बमाने इफ्तरका, शताना बमाने इफ्तरका। तो इफ्तरका का हम तरकीब करेंगे। शताना बमाने इफ्तरका, इफ्तरका मुस्नद फ़ेल, हुआ ज़मीर इसमें मुस्नद इलैहि है फ़ाइल, और बैना ज़र्फ़ मुज़ाफ बैना ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान मुज़ाफ, बैना ज़र्फ़ मकान मुज़ाफ, ज़ैदिन मातूफ अलैहि है, वाव हर्फ आतफ, अम्रिन मातूफ, मातूफ मातूफ अलैहि मिलकर मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी बनेगा। इसके लिए इफ्तरका मुस्नद फ़ेल के लिए। तो इफ्तरका मुस्नद फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया। ठीक है जी, जुमला फ़िअलिया खबरिया। समझ आ गई बात? शताना बमाने इफ्तरका मुस्नद फ़ेल, तो शताना
ये अस्माए अफ़आल में से है, और अस्माए अफ़आल में से ये इसम फ़ेल बमाने फ़िल माज़ी है, बमाने फ़िल माज़ी है, और बाइना ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ में से कौन सा ज़र्फ़ है? ज़र्फ़ मकान। समझ आ गई बात हज़रात? अब दूसरा जी देखिए, हाई जी हाता, हाँ हाई हाता बमाने बाउदा मुस्नद फ़ेल, हाई हाता बमाने बाउदा मुस्नद मुस्नद फेल। फ़ेल, यौम मुज़ाफ़, यौम ज़र्फ़ ज़मान मुज़ाफ़, क्योंकि यौम ज़र्फ़ ज़मान होता है, यौम ज़र्फ़ ज़मान मुज़ाफ़, और अल ईद मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये क्या बनेगा? फ़ाइल। मफूल फी फाइल बनेगा। क्या बनेगा? फ़ाइल। समझ आ रही है बात? बाउदा यौमुल ईद, दूर हुआ ईद का दिन, तो दूर होने वाला ईद का दिन है। ठीक है जी, यहाँ पर मरफू है इसलिए फ़ाइल बना रहे, ठीक है? तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया। जी, बल ज़ाइदन कोई कर ले। जी हज़रत, बलहा सर जी अगर ये बमाने दा फ़ेल जी अमर, बिल्कुल, जी बिल्कुल, फ़ेल फ़ेल अमर। अमर, और बलहा इसमें ज़मीर बमाने दा फ़ेल फ़ेल अमर, अमर, ठीक है। इसमें अंता ज़मीर ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, जी, ज़मीर और मरफ़ू मुत्तसिल जी, और वो है मुस्नद फ़ाइल इलैह है इसका। फ़ाइल। जी, और ज़ैदन इसम है, और मसनद इलैह है, और ये ज़ाइदन, ज़ाइदन मफ़ऊल बिही, मफ़ूल ज़ाइदन, बिही है। हाँ। जी, मफ़ूल बिही है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया बना। जी बिल्कुल, क्योंकि अमर है, ठीक है जी। जी हज़रत। जी, हय्य हलिस सलाता, जी सॉरी, हैया हल बमाना अमर हाजिर अंतज बमाना आई थी हय्य हल इसमें बमाना आई थी। फेल, इसमें फेल बमाने अमर हाजिर ईती, बमाने अमर हाजिर ईती। अब ईती क्या कर ले तरकीब, ईती मुस्नद फेल, ईती मुस्नद फेल, अंता ज़मीर इसमें मुस्नद इलैह, ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फ़ाइल, और अस्सलाता मफ़ऊल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर मुरक्कब मुरक्कब फी जुमला, जुमला फ़िअलिया इंशाइया, जुमला फ़िअलिया इंशाइया। जिअतु का इज़ तलअत शम्सु, जिअतु का जी इज़ जी तलअत शम्सु के हवाले से मैंने ये बताया था कि इज़ जो होता है ना, इज़ हमेशा जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है, तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी बनेगा। और साथ ये भी बताया था कि अलबत्ता कुरान में जहाँ इज़ के बाद काला का मादा आ जाए, तो वहाँ इज़ उज़कुर फ़िल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बिही बनता है। ठीक है जी। अब आप देखो, दोनों मिसालें तरतीबवार मौजूद है आपके सामने। जिअतु का इज़ तलअत शम्सु, जिअतु मुस्नद फ़ेल, तो ज़मीर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्नद इलैह है फ़ाइल, और काफ ज़मीर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ऊल बिही, और इज़ मुज़ाफ़, इज़ क्या बनेगा? मुज़ाफ़, ज़र्फ़ और ज़मान तलअत इज़, इज़ ज़र्फ़ ज़मान मुज़ाफ़, और तलअत मुस्नद फ़ेल, और अश-शम्सु मुस्नद इलैह फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर मफ़ऊल मुज़ाफ़ फी। इलैह, ठीक है? ये क्या बनेगा? इज़ हमेशा मैंने बताया कि ये मुज़ाफ़ होता है जुमला की तरफ, इज़ मुज़ाफ़ बनता है और जुमला मुज़ाफ़ इलैह, तो फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये फिर मफ़ऊल फ़ी बनेगा जिअतु फ़ेल के लिए। तो जिअतु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर मुरक्कब मुरक्कब मुफ़ीद जुमला, जुमला फ़िअलिया ख़बरिया। ठीक है जी। अब इज़ा का भी करते हैं, इज़ का हो गया, इज़ा का भी करते हैं। आती का इज़ा जाअ ज़ैदुन, आती का इज़ा जाअ ज़ैदुन। इज़ा के हवाले से क्या अर्ज़ किया था? इज़ा के हवाले से मैंने ये कायदा बताया था कि इज़ा के बाद अगर 2 फ़ेल हो, तो इज़ा शर्तिया होगा और माबाद दोनों फ़ेल शर्त और जज़ा होंगे। ठीक है जी, वो शर्त और जज़ा होंगे।
اور اگر ازا کے بعد ایک فعل ہو تو پھر از کا حکم ہوگا، از کا حکم ہوگا۔ از کا حکم کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح از مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، اس طرح پھر ازا بھی مضاف ہوگا جملے کی طرف۔ تو آتی کا ازا جاء زیدن کا کیا ترکیب ہوگا؟ آتی مسند فعل، انا ضمیر اس میں ضمیر مرفوع متصل مسند الیہ ہے فاعل آتی، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہی، ٹھیک ہے جی، آتی۔ تو اور ازا یہ مضاف ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد ایک فعل ہے، اور جاء مسند فعل زید مسند الیہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مرکب فی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، ازا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ مفعول بہ، مفعول فی۔ آتی مسند فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر مرکب فی جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیفا کا بتایا تھا کہ اگر کیفا کے بعد اسم ہو تو خبر مقدم ہوگا، جیسے کیف حالو کا، تو کیفا خبر مقدم اور حالو کا مضاف الیہ مل کر حالو مضاف، اور کاف ضمیر منصوب ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر جار مجرور مل کر یہ پھر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ مل کر یہ پھر کیا بنے گا؟ مبتدا خبر مل کر مرکب فی جملہ کلام جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔